অনেক খাতা আছে, সে খাতা ভিতরে অনেক কিছু বি লেখা যায়, কিন্তু সেই খাতা ভিতরে গোটে নিয়ারা খাতা থাকে যাহাকে আমি সমস্তে কহু রফ খাতা। এই এস নিউজ ওড়িয়ার প্রযোজনার আমি এক নূয়া স্টোরি ইমেজর ওড়িয়া সাহিত্যর এক নূয়া বিপ্লবকে নেই আমি আপনার দেখাইবু সবুদিন ঠিক সন্ধ্যার নূয়া ধারাবাহিক রফ খাতা। হ্যাঁ দর্শক বন্ধু, আহাকু আমি রফ খাতার না এথিপাই দেইছু যে জীবনে সবুঠু মূল্যবান হচ্ছে রফ খাতা। কেহি ইয়াকু রফ তো কইপারନ୍ତି, কিন্তু প্রকৃতরে সে খাতা যে কেতে মহান আম জীবନରେ আমার নূয়া ধারাবাহিক রফ খাতা দেখিলে আপনার মানে জাঁপারে। এখন সংযোজনা করেছেন অধ্যাপক প্রফুল্ল সাহু, ଆଉ ଏଥିରେ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଭୂଇଁଆ, ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ। ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କବି, ଲେଖକ ଓ ଗାଳ୍ପିକକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜର ନାଁ ହେଉଛି ରଫ୍ ଖାତା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଫ୍ ଖାତାର ସଞ୍ଜ ନଇଲା ପରର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଞ୍ଜ ନଇଲା ପରର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିନୟ ସାହୁ, ଶ୍ୟାମପଦ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଡକ୍ଟର କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପତି ମୋଦି, ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ଆଖିରେ କଜଳ, ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିନୟ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ। କବିତାରେ ଭିଜିଯାଏ ଦେହ, ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ। ସେମିତି ଏକ କବିତାରେ ଭିଜେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ତୁମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତୁମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଆଉ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଚରିଯାଏ କେମିତି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା। ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଉତ୍ତଳା ଜୁଆର ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ
କେମିତି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ, କେମିତି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ, ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ମନ, ତୁମେ ସତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତୁମକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ସତେ ନୀଳ ଦିଗ୍ବଳୟ କଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ହାତଟାରି ଡାକୁଥିବା ସାମାୟିତ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଳ। ତୁମ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ର କେମିତି କେଜାଣି ଟାଣିନିଏ ଆପେ ଆପେ, ଏବଂ କେମିତି ସତେ ମୋହର ମନ୍ତ୍ରରେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗିବାକୁ ଦୁଇ ବାହୁ ମେଲିଯାଏ ସତରେ। ତୁମ ଜବାଧାରକୁ ଦେଖିଲେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତୁମେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ ରଙ୍ଗରେ। ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ଉଦାର ସାଗର ପରି ବେଶ ଚୁପଚାପ ଶାନ୍ତ, ଅବା କେବେ ତୁମକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆକାଶ ପରି ତୁମେ ବେଶ ଉଦାସ। ତୁମେ ଚାହିଁଦେଲେ ନେତ୍ର ପ୍ରସରିଯାଏ ଜଳସ୍ଥଳ ବରଙ୍ଗିରି ଆକାଶକୁ। ତୁମେ ହସତ୍ ଫୁଲ ସୁଷମା ବରା ଢଳ ଛଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପଦ୍ମଫୁଲ ବିମୁଗ୍ଧ ସେ ରୂପ, ତୁମେ ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତୁମେ ଅହର୍ନିଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଥିବା ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁପମ ରାଗିଣୀଟିଏ। ତୁମେ ସତରେ ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ। କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୁମକୁ, ତୁମେ ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ରଫ୍ ଖାତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପତ୍ତି ମୋଦି ଯାହା କହନ୍ତି। मेरा नाम संपत्ति मोड़ा है। मैं कवित्री हूँ और मैं बहुत पहले से लिखती आ रही हूँ। मुझे बहुत शौक है लिखने का। साहित्य से मेरा जुड़ाव बहुत है और मुझे साहित्य सम्मान से बहुत बार नवाजा गया है। न्यूज़ चैनल के द्वारा जब मुझे कहा गया कविता पाठ करने के लिए, मैंने देखा इन लोगों ने रफ खाता बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। मुझे रफ खाता, इनका सब्जेक्ट भी, नाम भी, शीर्षक भी बहुत मन को भा गया। क्यों भा गया मैं कहूंगी आपको कि मेरे हमेशा सिरहाने में एक रफ खाता रहता है और जब भी कुछ लिखने का मन होता है मैं रफ खाता लेके बैठ जाती हूँ और लिखने लग जाती हूँ। तो मुझे आज ये खुशी हो रही है कि मेरे आज इस रफ खाता की वार्ता करने का मौका मुझे एस न्यूज़ ने दिया। तो सबसे पहले मैं एस न्यूज़ की बहुत बहुत आभारी हूँ। आज ये कोरोना के समय पे मेरे मन में जब ये आया लिखने के लिए, मैं नतमस्तक होकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के लिए, हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, जिन्होंने कि बहुत कुछ किया है, उनके लिए लिखा। और सबसे ज़्यादा मैंने लिखा है सेवा कर्मियों के लिए, जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेस हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सभी को नतमस्तक होकर मैंने अपने मन के भाव इस रफ खाते में डाल दिए हैं। और आज मैं प्रथम बार किसी भी पत्रिका में निकलने से पहले एस न्यूज़ के सामने अपने ये भाव व्यक्त करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं श्री श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ श्रीमान नवीन जी पटनायक को सप्रेम भेंट हृदय से, जो कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कार्य के प्रति सदा सचेतन नवीन जी हमारे, कार्य के प्रति सदा सचेतन नवीन जी हमारे हर कार्य में अव्वल रहते हैं, कृष्ण की तरह सारथी, लक्ष्मण की तरह सजग, भरत की तरह उदार, राजा हरिश्चंद्र जी जैसा व्यक्तित्व है। समग्र उड़ीसा वासी के हित के खातिर आप हर घड़ी तत्पर रहते हैं। चाहे आ जाए कोई भी प्राकृतिक आपदा, चाहूं और राहत कार्य समर्पित भाव से करते हैं। आपको हम नतमस्तक हो शीश नवाते हैं। केबे साहित्य तो केबे रंगमंच, केबे अभिनय तो केबे वाद्ययंत्र, सबुथिरे जे सिद्धहस्त से हेउचंती गाल्पिक श्यामपद चटर्जी। तेबे आसंते सुनिबा तांकर एक सुंदर गल्प। टिके हेले निद नथिला आखिरे, खोला थिला दुई पता, एमिति आखिरे भरी देला स्वप्न, केजाणी काहीं विधाता। सपने देखिली एमिति मनीष, नाही जार हिंसा द्वेष, विवेक आदेशे करे सबु काम, इंद्रिय को करी बस।
पर दुख देखी भिजे तार आखि पर सुखे हुए खुशी पाइबार आशा न रखी मनरे देई चाले हसी हसी साजी एक त्यागी सारा पृथ्वी को भाबी एक परिवार जोगारूढ़ होई दूर करुछि से समाजर कुसंस्कार जय पराजय भल पुणी मंद अछि आउ द्वंद्व जेते सेसबुर ऊर्ध्वे उठिए मनीष देवता होइछि सते अचानक जदि मोर ए सपन बास्तव पालटी जीव दुनियारू दुख अपसरी जाई मर्त्य आम स्वर्ग हेब दुनियारू दुख अपसरी जाई मर्त्य आम स्वर्ग हेब दुनियारू दुख अपसरी जाई मर्त्य आम स्वर्ग हेब ମାଟିଠୁ ଆକାଶ, ପୁରାଣଠୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସାହିତ୍ୟଠୁ ସଂସ୍କୃତି ସବୁଠି ଯେ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आमे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर लीला परिकर महापुरुष अच्युतानंदंकर कलिजुग गीता संपर्क में आलोचना करुले। पूर्व भाग रे आमे पूर्व भाग रे देखिले जे जेतेबेले भगवान श्री कृष्ण यह लीला संवरण करुचंती संवरण करिबा पई मध्य स्वर्गारोहण रे जीवा पई युधिष्ठिर जाउचंती। ए भली गोटे अव्यवहित पूर्वरु गोटे कहानी संगठन संरचना करा जायछि। महापुरुष अच्युतानंद लिखिचंती कलिजुग गीतारे जे ब्राह्मण खाइब पाइब नाही एवं ब्राह्मण रो जो उक्ति दिवाकर पंडा ब्राह्मणर जे मनीष माने कलिजुगरे देवस्व राजस्व ब्रह्मस्व याकू खाइबे। कलिजुग बड़ भयंकर। चेता लोक केवल कलिजुग को जानीपर बुझीपर बोली महापुरुष केवल कहते। आम जानिले जे पूर्व एपिसोड रे बुझीचे जे कलिजुग आसुचंती जुग अनुक्रम तो भगवान करिसेंती। सत्य जुग परे सत्याजुग आसीबो, त्रेतायुग परे द्वापर जुग आसीबो, द्वापर जुग परे कलिजुग आसीबो, पुणी सत्य हबो। ये होची जुग को जुग यही मत भगवान को यह हूँ संरचना। पृथ्वी पृष्ठ रे नर देह रे नारायण मध्य एठी मृत्युवरण करिछि। कलिजुग प्रार्थना भी करिछि जे प्रभु आपण अछंती बोली मु जाई पारिल नाही, मो समय आसी पारला नाही। युधिष्ठिर अछंती बोली मध्य मो समय आसी पारला नाही। तेबे कारण एमाने सत्य सत्य जोठी अछि सेठी कली प्रवेश करि परिबो नाही। तेबे कली संपर्क रे जेतेबेले अर्जुन को बुझेइचंती, अर्जुन को कहउचंती श्री कृष्ण कले धैर्य धरी प्रतीक्षा कर, अपेक्षा कर, कलिजुग आसुची। कलिजुग किपरि तार स्वरूप संपर्क रे प्रथमे भगवान श्री कृष्ण तांकर सखा अर्जुन को कहिचंती। आज एपिसोड रे हम सुनिबा कौन से कथा गुड़िक कहिचंती भगवान श्री कृष्ण कलिजुग संपर्क रे अर्जुन को। श्रीहरि बोइले सुण पार्थ धनुर्धर, कलिजुगर से कथा अति अगोचर। धर्मवंत प्राणी माने अधर्म करिवे, खाइबा निमंते सेहो पशु पाली थिबे। कलिजुग गोटे अति संकट मुहूर्तर कथा कहउचंती।
से संकटटी होची हातरे लोक पाଳିबे पशु पुणी ताको बद्ध करके खाइबे। ये होची प्रथम कथा। भगवान श्रीकृष्ण चेतई दौरान अर्जुन को खाइबा निमंते जत्न करिकरी पशु को पालिबे एवं ताकू बद्ध करिकरी खाइबे। बढ़िले ताहार प्राण कलबल करी 7-5 मिली ताकू पकाइबे मारी बांटी कुंटी नहीं मांस खाइबे सिझाई अधर्मवंत को कथा कि कहिबी मुही। अधर्मवंत कथा मु कौन कहबी? कलिजुग आसिले धर्म स्थान रे अधर्म आसीजीव एवं समस्ते मनीष अति जत्न रे पशुपालन करिवे एवं मिसिकरी दले हेकरी ताकू हत्या करिवे एवं काटी कुटिकरी ताकू खाइबे। ये हूँ प्रथम कथा। कलिजुग आसिले या हम आज समय आम देखु कलिजुग जो आसला कलिजुगर अयम आरंभ है केवे है महाप्रभु भगवान श्रीकृष्ण वर्तमान जेबे होती जितेबाला श्रीकृष्ण वर्तमान होती युधिष्ठिर वर्तमान होती कली प्रवेश कर कारण कली प्रवेश न करते राज परीक्षित राजा को तक्षक दंशन करने 7 दिन भागवतर प्रयोग तक्षक दंशन करने हो था एवं भागवतर आयोजन हो था। जब भागवतर प्रसंग आरंभ घटी सुकुमुनि द्वारा परीक्षित राजा मोक्ष प्राप्ति से दिन कली प्रवेश कर जो दिन ठार कली प्रवेश कर दिन ठार मनीष भितर ये पशुपालन करने प्रवृत्ति आरंभ हो पशुपालन प्रवृत्ति करी जत्न प्रवृत्ति पशुपालन एवं पशुपालन कर हत्या कर 7 जन 8 जन मिसिक हत्या कर से कलबल होची मे चित्कार करुँच मांस काटिक खिया जा दिन पर्यटन चली कलिजुग ताहा थिबो। पुरुष असत्य करी अरजीवे धन नारी माने कहिबे जे कपट वचन। द्वितीय कथाटी प्रथम कथा होची पशुपालन करिवे जत्न रे एवं ताकू बध करिकरी खाइबे। द्वितीय कथा जो होची पुरुष माने असत्य करिकरी धन अर्जन करिवे सत्य धन अर्जन करिवे नाही झाड़ बुहाई कि धन अर्जन करिवे नाही से माने मिछ कहीकि धन अर्जन करिवे मिथ्या प्रवेश करिवो सत्य स्थान रे मिथ्या प्रवेश करिवो धर्म स्थान रे अधर्म प्रवेश करिवो। एवं नारी मान संपर्क में कह जाइछि जे नारी माने कपट वचन कहिबे दुई कथा कहिबे पटे कथा गोटे कहिबे अन्य पटे अलग काम करिवे कपट वचन कहिबे। सेति विश्वास नारी नखी नदी नर नरपति एमान को विश्वास करबनी बोली खना वचन कही नारी माने पुरुष माने असत्य रे अर्जन करिवे धन एवं नारी माने कपट वचन कहिवे। आउ गुरु विप्र वैष्णव को न मानिबे केही ताहांकु देखिला क्षणी करिवे टीटाही। गुरु विप्र ब्राह्मण आ वैष्णव एमानंकु केही मानिबे नाही कारण गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। गुरु विप्र ब्राह्मण को केही मानिबेनी एवं अपरंतु सेमानकु टाही करिवे थट्टा करिवे। आ तृतीय कथाटी चतुर्थ कथाटी सरला परे पंचम कथाटी होउची जो मंत्र गुरु देवे से मंत्र मने रहिबो नाही साधु संत माने हतमान्य हेबे संपत्ति निशारे मातिबे उन्मत्त हेबे भंड हेबे कुलवती नारी कुलहीना हेबे आ मद्य मांस नारी भोग करिवे। ये होची भगवान श्रीकृष्णंकर अर्जुन को प्रथमे उक्ति जे कलिजुग केते भयंकर प्रथम रु शेष पर्यंत जो 10टी कारण कहिचंती भगवान श्रीकृष्ण कलिजुग गीतारे महापुरुष स्थान कलम करिचंती ता भितरे प्रथम कथाटी होची प्राणी वध हो द्वितीय कथाटी धर्म स्थान अधर्म हो तृतीय कथाटी होची मिथ्या कथा हो एवं चतुर्थ कथाटी होची गुरु विप्र वैष्णव केही मानिबे नाही मंत्र मने पड़िबो नाही गुरु जो मंत्र कहिबे हे गुरु से इत्यादि कथा घटिबो कारण भगवान होउछन कर्ता गुरु होउछन कर्ता कर्ता मने पड़िबे नाही
ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ତ ହତମାନ୍ୟ ହେବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶାରେ ଲୋକ ମାତିବେ, ଅହମ୍ମକ ହେବେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ହେବେ, କୁଳବତୀ ନାରୀ କୁଳହୀନ ହେଇଯିବେ। ତା ସହିତ ମଦ୍ୟ ମାଂସ ନାରୀ ଭୋଗରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବେ ମଣିଷ। ଆମେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଯେ କଳିର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା କିପରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି, ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି। ଏବେ ଆଜିରେ ଏତିକି, ଆସନ୍ତା ଭାଗରେ ଆମେ ଶୁଣିବା କଳିର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ହେଲା ଆଜିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଭୟଙ୍କରିତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।